Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to read another poem of class 12 standard, that is an elementary school classroom in a slum, and which is written by Stephen Spender. So before moving ahead, I just want to give you a brief description of the poem. That means what the poem is all about. So the poem is about the children who live in a slum area, and the poet depicts, or we can say portrayed, a vivid scenario of how these children live their life in a slum between a hard poverty and lack of opportunities. So the poet wants to change the life of these children, and that can only be done through education, which we will see towards the end of the poem. So let's begin with our line to line explanation of the poem. Here it goes. Far, far from gusty waves, these children faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. So here the poet tells us that the life of these children is neither full of happiness nor full of energy, and children and their faces are like rootless weeds, और उनके जो faces हैं is compared to rootless weeds. Here the poet is using the literary device simile as he is using the word like, और उनके faces किसके साथ compare किए हैं? Rootless weeds. Weeds क्या होती हैं? A plant which is considered undesirable and unattractive. लेटर द पोइट सेज दैट द हेयर टोन राउंड देयर पार्लर, और उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं राउंड देयर पार्लर. पार्लर यहाँ क्या रेफर कर रहा है? एन अनहेल्दी पेल अपीयरेंस. तो उन बच्चों का जो अपीयरेंस है दैट इज पेल, पेल रक्तहीन. After describing this, now describe about the children who were sitting in the classroom which is situated in a slum area. So the first one is a tall girl with her veined down head. Here the poet is using the word veined, जो कि रेफर कर रहा है बेंड होना या फिर विद हैवी बर्डन और ऑप्रेस बाय समथिंग. सो एक लंबी लड़की है और शी इज़ बर्डन अप बाय द पोवर्टी. वो उसने अपना हेड डाउन कर रखा है. क्यों कर रखा है? बिकॉज शी इज़ बर्डन अप विद पोवर्टी. द नेक्स्ट वन इज़ द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज. नाउ यू ऑल नो दैट पेपर इज थिन. पेपर पतला होता है, तो सेम जो ये लड़का है ये भी पेपर जैसा दुबला पतला है. और यहाँ पे द पोएट हैज़ कंपेयर his eyes to the red's eyes. as you all know that जो रेड होता है उसकी आइज़ बाहर की तरफ होती हैं. तो सेम सिमिलरली द बॉय जो कि बहुत ही ज़्यादा पतला है, just because he is not getting his food and he is not getting a proper amount of nutrition which is required by him, इसी कारण उसकी जो आंखें हैं वो बाहर की तरफ आ गई हैं और वो क्या है, सर्च कर रहा है फूड को. द थर्ड इज द स्टन अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइडिंग अ फादर्स ग्नाल डिजीज. यहाँ पे हायर क्या है? हायर यहाँ पे सक्सेसर या फिर वारिस, और ट्विस्टेड बोन्स मतलब टेढ़ी मेढ़ी बोन्स हैं. स्टंटेड यहाँ पे रेफर कर रहा है जो प्रिवेंट फ्रॉम ग्रोथ ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशंस, जो ग्रोथ को रोक देता है. व्हेन यू नॉट गेट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी, योर ग्रोथ स्टॉप्स. तो जो ये थर्ड जो लड़का है इसने अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से विरासत में क्या लिया है? नाल डिजीज़ लिया है. इसकी जो बोन्स है वो ट्विस्ट हुई हैं. इज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ the dim class, one unnoted sweet and young, his eyes lives in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Now the last one is a boy who is sitting at the back of the class, और वो पीछे बैठ के क्या कर रहा है? he is watching a squirrel game, जो बाहर विंडो के बाहर he is watching squirrel. और यहाँ पे basically the poet wants to draw a contrast between the life of these children and the squirrel. जो स्क्वायरल है उसकी लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम है, बट इन बच्चों की जो लाइफ है दैट इज़ ओनली लिमिटेड टू दिस फोर वॉल ऑफ द क्लासरूम. दे डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड. तो बेसिकली इफ वी जर्नलाइज दिस, if we summarize this first stanza, we will find that a very pessimistic tone plus एक बहुत ही ज़्यादा, because as in the very first line he has said that the children's life is away from the enjoyable life, plus their face are like weeds, the unwanted plants, as I have already told you ki weeds, unwanted plants, undesirable, unattractive plants. So their faces are like rootless weeds. And then he has used the word pallor, that means unhealthy pale appearance. Then he has given descriptions of four students who were sitting in the classroom. The first one is a tall girl, जो कि head down करके बैठी है, and why she has done her
head down because she has a burden of poverty. The next one is a paper swimming boy who's very thin. Why he is thin? Because malnutrition hai, he is not getting his food because poverty है. The third one is unlucky hire, जिसने अपने father से क्या इनहेरिट किया है, डिजीज, ग्नाल डिजीज, जिसमें उसकी पूरी बोन ट्विस्टेड है. एंड द फोर्थ वन एज द बॉय हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास एंड हिज आईज इज फुल ऑफ ड्रीम्स. एंड देन द पोएट गिव अस a contrast between the life of these children and the square who is playing outside. um, so this is all in the first stanza. Now we will come to the second stanza. Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. Okay, now अब यहाँ पे पोइट हमें वो चीज़ें बता रहा है जो उनकी जो उन बच्चों के क्लासरूम में लगी हुई हैं. सो बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है ऑन सोर क्रीम वॉल्स, यहाँ पे द पोइट इज़ टेलिंग अस द कंडीशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम की जो फेडेड वॉल्स हैं, पेंट नहीं हुआ है. बेसिकली इट सिम्बलाइजेज दैट the quality, the poor quality of education that the students were getting in that classroom. पीपल हैव डोनेटेड शेक्सपियर्स हेड, लोगों ने वहाँ पे डोनेशंस कर रखी हैं स्कूल के अंदर, और उसमें क्या उनकी क्लास में क्या लगा हुआ है, शेक्सपियर हेड की फ़ोटो लगी हुई है. क्लाउडलेट्स एट डॉन, सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज सिटीज़ की वहाँ पे पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं. बैलेड फ्लावरी टायरलिस वैलीज. अब यहाँ पे जो ये टायरोलिस वैली है, ये बेसिकली इट इज़ अ वैली सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया. ओपन हैंडेड मैप लगे हुए हैं वहाँ पे, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. बेसिकली दीज मैप्स आर गिविंग अ विविड पिक्चर ऑफ वर्ल्ड्स टू दीज स्टूडेंट्स, बट इन रियलिटी ये इनके कोई भी काम की चीज़ नहीं है, बिकॉज ये बच्चे यहीं पे इस फोर वॉल के अंदर ही रह जाएंगे. दे आर नॉट गिवन चांस टू गो आउटसाइड फ्रॉम दीज क्लासरूम्स. तो ये जो मैप्स लगे हैं यहाँ पे, दे आर ऑफ नो यूज़ टू दीज स्टूडेंट्स. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड. इन बच्चों के लिए ये मैप कोई यूज़फुल नहीं है, बल्कि जो ये विंडोज़ हैं यही इनके लिए इनका सब कुछ है. वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फोग, और जहाँ पे इनका फ्यूचर फोग से पेंट है. नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई. अब यहाँ पे जो नैरो स्ट्रीट्स हैं इनके जो स्लम्स एरिया में जो नैरो स्ट्रीट्स हैं वो कैसे ढकी हुई हैं, वो लेड स्काई से ढकी हुई है. लेड स्काई यहाँ पे ग्रे स्काई विच सिम्बलाइजेस नो होप. लेड स्काई रेफर्स टू डल ग्रे कलर विद नो होप. फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स. ये जो बच्चे हैं इनकी जो लाइफ है दैट इज़ अवे फ्रॉम द रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स. These maps this Shakespeare had is of no use to them because they are inside the four wall of the classroom. They are not given opportunities to go outside and to know about the world. Is a weak the map a bad example with ships and sun, love tempting them to steal. नाउ द पोइट इज सेइंग कि जो ये शेक्सपियर और जो वर्ल्ड मैप इनकी क्लास के अंदर लगा रखे हैं, जो लोगों ने डोनेट कर रखे हैं इस स्कूल के अंदर, इट इज़ श्योरली अ बैड एग्जाम्पल. वीक्ड यहाँ पे मतलब बैड, बेकार एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए. बिकॉज हमें पता है शेक्सपियर क्या है, ही इज़ एपिटोम ऑफ ग्रेट लिटरेचर. बट इन बच्चों को दे डोंट इवन नो हाउ टू read and how to learn the things, right? और जो मैप है, the map is giving them a vivid picture of the different beautiful countries, but in reality they know that they have to stay inside this four wall. वो इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकते हैं. so ये जो ये शिप्स हैं और जो सन है, जो ये ब्यूटीफुल वैलीज यहाँ पे क्लासरूम के अंदर जो पिक्चर पोर्ट्रेट कर रखी है, ये इनको क्या करती हैं, ये इनको टेम्प्ट करती हैं स्टील चुराने के लिए. फॉर लाइफ दैट स्लाई टर्न इन देयर क्रैम्ड हॉल्स. और इनकी जो लाइफ है ये क्लियरली इनको क्रैम्ड होल्स में पुश कर देती हैं. फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट. और इनकी जो ये एंडलेस नाइट है दैट इज़ फुल ऑफ डार्कनेस. फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, इनकी जो लाइफ है दैट इज़ फुल ऑफ फोगीनेस एंड फुल ऑफ डार्कनेस. ऑन देयर स्लैग हीट दीज चिल्ड्रंस वेयर स्किन peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits of stones. और जो ये स्लैग यहाँ पे जो वेस्ट और वेस्ट के लिए यूज़ किया गया है, और हीप यहाँ पे ढेर है. तो ये जो बच्चे जो एक कचरे के ढेर पर रहते हैं, इनकी जो कंडीशन है दैट इज़ वेरी पैथेटिक. बिकॉज इनकी जो स्किन के अंदर से इनकी जो ये बोन्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई दे रही हैं, विच रिप्रेजेंट्स दैट दे आर
malnutrition, they do not get proper amount of food, they are in poverty, their life is full of fogginess and darkness. और इन्होंने जो ये स्टील बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और इन्होंने स्टील के ग्लासेस पहन रखे हैं। स्टील अगेन यहाँ पे पोइट सिंबलाइज करना चाहता है कि जो ये स्टील के स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं, दिस सिंबलाइज द हैवीनेस, द बर्डन दैट दे आर हैविंग इन देयर लाइफ विद मेंडेड ग्लास, और वो भी मेंडेड, वो भी ठीक किए हुए, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। अब जो इनके ग्लासेस हैं स्पेक्टिकल्स के, दे आर क्वाइट सिमिलर। जब हम कोई ग्लास की बॉटल होती है, जब हम उस पर स्टोन मारते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं। तो सेम वे इनके जो ग्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स के जो ग्लासेस हैं वो भी क्या है, बिल्कुल लाइंस आ रखी हैं उनके अंदर भी, और वो मेंडेड है, वो 2-3 बार ठीक किए हुए हैं, वो स्टील के हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द हैवीनेस, द बर्डन दैट दे आर हैविंग इन देयर लाइफ। All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. उनका जो टाइम और स्पेस है, उनका जो स्लम एरिया, दैट इज फुल ऑफ फोगीनेस, दैट इज फुल ऑफ डार्कनेस। सो यहाँ पे पोइट अपील करते हैं कि सो ब्लोट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज डूम, कि जो मैप है, वर्ल्ड का मैप है, वहाँ पे इनकी जो स्लम्स एरिया है, वी शुड ऑल्सो पॉइंट the slums in the world maps. Unless governor inspectors visitors, these map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Basically the poet wants to say that we should also present the lives of these children who are living in the slum area, and the education system that they are getting in the slum area. We should present this in front of the world, that the world should also know that the things, the problems that these students are facing. गवर्नर और इंस्पेक्टर और विजिटर्स कुछ स्टेप्स नहीं उठाते हैं। दीज मैप्स बिकम देयर विंडो, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकम्स। जो ये मैप्स हैं ये उनकी विंडो बन जाती हैं, बट स्टिल अगेन यही विंडोज उनको कहाँ शट कर देती हैं, कैटाकम्स में। कैटाकम्स क्या होती हैं, बेसिकली अंडरग्राउंड जो सिमेट्रीज वगैरह बनाए जाते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज दफनाई जाती हैं। तो बेसिकली दीज विंडोज बिकम द कैटाकम्स टू दीज चिल्ड्रंस। break open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run as your own gold sense, and let their tongues run naked. Basically now the poet is appealing कि जो ये बच्चे हैं इनको क्या किया जाए, इनको ग्रीन फील्ड्स में दौड़ाया जाए, इनको नेचर के अंडर लाया जाए। प्लस ही वांट्स टू एजुकेट दीज स्टूडेंट्स, these children, so that they can come out from this darkness, this fogginess, as he says that and now the children go green now, and show the children to green fields, and make their world run azure of gold sense, and let their tongues run naked into books, कि उनको let them उनको educate किया teach, जाए, let them उनको पढ़ाया जाए, make run naked into available books, the the white and sources. green leaves open, history theirs whose language is the sun. सो यहाँ पे पोइट क्या कहता है, हिस्ट्री उन्हीं की है जिनकी लैंग्वेज सन है। सन यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है, अ सेंस ऑफ होप, अ रे ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं कि एजुकेशन इज़ द ओनली सोर्स, इट इज़ द ओनली वेपन थ्रू विच द स्टूडेंट्स कैन बी make to come out from these catacombs, to come out from this darkness, this fogginess। सिर्फ एजुकेशन के द्वारा ही हम इनको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ डू like my video and subscribe my channel. Thank you.